Hi everyone, this is Yukti Belwal. Welcome to my channel, and today we're going to talk about the new Gazette of NMC about the regulations of medical education in India and abroad. Since this Gazette has come, there has been a lot of speculations and interpretations of this Gazette telling that which country will be more preferable, which country is not good for you, and which country will be more affected by this. As you know, that our country has a time duration in which we complete a medicine course, but it's not the same in every country. Due to their reasons and their rules, they follow their own curriculum and teaches the student, which is approved by their own health ministry and their own medical councils. So, what we have to see here is that it is not possible that every country, every other country will be following the same kind of curriculum or duration just like India does. So, there are differences, and which is meant to be understood that how this gazette is affecting any student who's studying in a particular country or will be studying in future in that particular country. So it's all about understanding, and there has been some technical glitch in the interpretation and understanding of that gazette, that so many speculations are there, and hence students are getting confused that where to go and what to understand out of it. As you know, I'm a consultant, I'm not a lawyer, and it takes time to understand such, legal language, because it's not for the layman. Only professionals, lawyers who has experience in this field can understand this. And that is why I took my own time to understand, let the people work, like, and they give us the understanding of the thing, and then we can present you what is what and how it will actually affect you. After all the discussions, what I have concluded is that this gazette will be affecting all the countries in some way or the other. The countries which are flexible enough to work around this gazette and norms will be easier for any student to pursue their education in. And some countries which might be rigid towards uh, this gazette and not be thinking of doing any kind of changes in their study pattern, or maybe their documentation, or maybe their modifications, they are not ready for the modification required for serving the Indian students, then there could be some little issue. जो एनएमसी ड्राफ्ट है उसमें दो पॉइंट्स ऐसे थे जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स को। जो पहला पॉइंट था वो था 2 साल के अंदर अंदर एग्ज़ाम को पास करना, जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे कि क्या नेक्स्ट वन में के लिए 2 चांस मिलेंगे या नेक्स्ट 2 तक के लिए 2 चांस मिलेंगे, वो चीज़ हट चुकी है। दूसरा था कि एक एडिशनल एग्ज़ाम होगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के, जिसका यहाँ पे इस गज़ेट में कोई मेंशन नहीं है। वो ड्राफ्ट था, इसलिए हमने आप लोगों को बोला कि वो ड्राफ्ट है, वो नहीं इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन अब इसका ऑर्डिनेंस पास हुआ है तो ये अब लॉ बन चुका है। अब एनएमसी के हाथ में चीज़ें नहीं है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर दी हैं और ये एक लॉ है तो इसे फॉलो करना है। लेकिन अगर इसमें कोई भी अमेंडमेंट लाया जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही लाया जा सकता है। कोर्ट में जज के सामने जो भी हम लोग प्रेजेंट करेंगे उसके सही और गलत को जज करके ही वो इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, विच इज़ एक्चुअली पॉसिबल। कानून लाया जाता है देश के लोगों की सहूलियत के लिए और रेगुलेशंस के लिए। यहाँ पे रेगुलेशंस की ज़रूरत थी मेडिसिन अब्रॉड को और इंडियन मेडिसिन को भी, लेकिन कुछ चीज़ें अगर पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ जाती हैं तो कोर्ट एक रास्ता होता है अपनी बात पहुँचाने का। And there's always been amendments in law for like a long time, like in history there has been amendments. So ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये एक पत्थर की लकीर है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है जो आपको सोचना है और जो जिसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, वो सब मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो डिस्कशन करने लायक हो।
और जिसमें टेंशन लेने वाली बात हो या पैनिक करने वाली बात हो। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। सो ये एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैंने प्रिपेयर करी है फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज तभी हम लोग समझ पाएंगे कि किस पॉइंट का क्या मतलब है। और जो भी एक्सपर्ट्स से हम लोगों ने बात करी है उनके जो डिडक्शंस थे उससे हमने ये सब समझा है और इन पॉइंट्स पे ध्यान दिया। सो व्हाट इज़ देयर इन द गज़ेट दैट कैन बी अफेक्टिंग योर मेडिकल एजुकेशन अब्रॉड? ऐसा क्या है इसमें जो आपके अब्रॉड के मेडिकल एजुकेशन में इफ़ेक्ट करेगा या कर सकता है? बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ ऐसी लैंग्वेज भी हैं जो एज अ लेमैन समझना मुश्किल था, तो जिस पे डिस्कशंस करके और लॉयर से डिस्कस करके जो इसको समझ सकते हैं उनसे चीज़ों को समझा गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें रिलैक्सेशन ये है कि एक क्लैरिटी बहुत अच्छे से दी गई है कि दिस विल नॉट अफेक्ट एडमिशन डन प्रायर टू द डेट ऑफ दिस गेजेट, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। ये पहले ऐसा मुश्किल होता था कि इस तरह की क्लैरिफिकेशन मिलती थी कि ये किस पे अप्लाई होगा, किस पे नहीं अप्लाई होगा। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप ऑलरेडी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, कर रहे हैं पढ़ाई या ले चुके हैं एडमिशन, तो आपके ऊपर ये इफेक्ट नहीं कर रहा है। इसके और अंदर भी जो लिखा है वो मैं आपको बताऊंगी इसमें। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। द ग्रांट ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन टू द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। नो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट शैल बी ग्रांटेड परमानेंट रजिस्ट्रेशन अनलेस he or she has undergone a course leading to medical degree with minimum duration of 54 months. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है गाइज, अ कोर्स लीडिंग टू, मतलब इट्स जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट MD program. It is always also talking about the prerequisite program for entering into the foreign medical for acquiring, for getting a foreign medical degree. तो यहाँ पे हमने एज अ डिस्कशन इसकी क्लैरिटी मांगी गई है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। द कोर्स लीडिंग टू फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मिनिमम ड्यूरेशन, यानी जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो फॉरेन डिग्री एक्वायर करने के लिए उसकी टोटल ड्यूरेशन 54 मंथ्स होनी चाहिए। द टोटल ड्यूरेशन यू आर स्टडिंग टू acquire a foreign medical degree should be 54 months minimum. Okay, undergone an internship for a minimum duration of 12 months in the same foreign medical institute. उसी इंस्टीट्यूट में आपका 12 महीने का इंटर्नशिप भी चाहिए, आप उसे अंडरगॉन आपने किया हुआ हो। Received a foreign medical degree with medium of instruction in English. Your medium of instruction, the language of teaching should be English. Studied the mandatory subjects specified in the Schedule 1, which we can see because ये तो पहले ही एक्सेप्टेबल था, तभी इतने सारे बच्चे निकल के आ चुके, तो ऑफकोर्स ये सब्जेक्ट तो सारे ही इसमें इंक्लूड हैं। ये ए पॉइंट के अंदर के पॉइंट्स हैं 4। उसके बाद बी पॉइंट है रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded at par with the license to practice medicine given to citizens of that country. यहाँ पे ये बात आती है कि या तो आप रजिस्टर्ड हो या फिर कॉम्पिटेंट हो कि आपको लाइसेंस मिल पाए वहाँ पे प्रैक्टिस करने का। जैसे मैं कॉम्पिटेंट हूँ लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे और अदरवाइज कॉम्पिटेंट का भी लिखा गया है, यानी कि आपकी जो डिग्री है वो एलिजिबल हो वो ही आप डिग्री लो, और जो वहाँ के लोकल लोग भी वही डिग्री करते हैं। ऐसा आपकी डिग्री और लोकल लोगों की डिग्री में फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। C point is undergone supervised internship in India for a minimum term of 12 months after applying for the same to the commission. मतलब कमीशन में अप्लाई करने के बाद आपने एक इंटर्नशिप और करनी है, जो डबल इंटर्नशिप की बात कही गई थी उसमें यहाँ कहा गया है कि आपको एक सुपरवाइज इंटर्नशिप इंडिया में करनी है।
has cleared the national exit test or such other mandated test or test conducted by the commission. जो भी अगर national exit test आ जाता है तो वो, otherwise कुछ changes आता है तो वो आपको देना पड़ेगा. So these are the eligibility criteria. These 4 point and their sub points are the required thing. अब आगे बढ़ते हैं. I hope you understood this thing. The applicability. Apply किस पे होने वाला है? So to the foreign medical graduate who have acquired a foreign medical degree or primary qualification as the case may be prior to coming into force this regulation, यानी कि इस रेगुलेशन के आने से पहले ही आपने फॉरेन मेडिकल डिग्री या फिर प्राइमरी क्वालिफिकेशन एक्वायर कर ली हो. ठीक है. टू कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर एजुकेशन इन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस प्रायर टू कमिंग टू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन, यानी कि यू आर ऑलरेडी परसुइंग योर education abroad. C. To such foreign medical graduate who are specifically exempted by the commission or the central government as the case may be by notification. In this point comes the US, UK, Australia, Canada and New Zealand. The foreign medical graduate who have acquired a foreign medical degree or primary qualification as the case may be, and the candidates who are pursuing their education in foreign institute prior to the coming into force of these regulations shall be governed by erstwhile applicable regulation. यानी कि अगर आपने already acquire कर लिया है डिग्री तो आप पुराने वाले रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलेंगे. इन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आप नहीं चलेंगे. यू विल बी गवर्नड बाय द erstwhile पुराने applicable regulations. Third point, notwithstanding anything contained in these regulations, no grant of permanent registration to practice medicine shall be issued if the same infringes upon public policy or national security. तो बेसिकली कहा गया अगर आप इन पॉइंट्स पे भी आधारित नहीं है, उनमें भी नहीं हो रहे तो आपको नहीं मिलेगा परमानेंट लाइसेंस. ओके. द कोर्स एंड इंटर्नशिप और क्लिनिकल क्लर्कशिप. ओके. तो यहाँ पे इंटर्नशिप और क्लिनिकल क्लर्कशिप के बीच में और लिखा है. इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए अप्लाई और उपयोग किए जा रहे हैं. ठीक है. दोनों सेम है. shall commensurate with the MBBS course of India in accordance with the regulation on graduate medical education 1997 and subsequent amendments जो होते रहते हैं thereto, and shall include the subjects mentioned therein as are duly recognized by commission under subsection 2 or of section 61 of the Act. The course curriculum shall be made available for the review by appropriate authorities and if necessary in the website of the institution or university wherein the course is being pursued at the time of joining the course. So ये कहा गया है कि ये सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए वेबसाइट पे भी सारा करिकुलम क्या पढ़ाया जा रहा है. ये सब तो काफ़ी साइट्स में अवेलेबल है ये सब उनकी अपनी वेबसाइट पे. So the entire course, training and internship or clerkship shall be done outside India in the same foreign medical institution throughout the course of study and no part of medical training and internship shall be done in India. यानी कि मेडिकल ट्रेनिंग जो आपकी पढ़ाई है उससे रिलेटेड और इंटर्नशिप यहाँ इंडिया में नहीं करनी है. ठीक है. या किसी और कंट्री में भी नहीं करनी है. ठीक है. आपको जहाँ से आपने अपना प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन किया वहीं से पूरी पढ़ाई आपको करनी है. CRMI कंपल्सरी रोटेटिंग इन मेडिकल इंटर्नशिप. इसमें फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए कहा गया है कि ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एज रेगुलेटेड बाय NMC are required to undergo internship at par with the Indian medical graduates if they desire to seek permanent registration to practice in India. यानी कि जैसे इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप करते हैं उसी तरीके से फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को भी इंटर्नशिप करनी है. इस ए पॉइंट का फर्स्ट सब पॉइंट है ऑल मेडिकल ग्रेजुएट्स, ऑल फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड, जब तक कोई अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, shall be required to undergo CRMI at par with Indian medical graduates after national exit test step 1 after next becomes operation. कोई और नोटिस अगर इसके उसमें आएगा तो आपको नहीं करना होगा ये नोटिफिकेशन अगर कोई ऐसा नहीं आता है तो उसका मतलब है तो आपको करना है. इसका जो सेकंड पॉइंट है ए के बाद बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. इसमें आपको देखना है कि इंडियन सिटीजन्स including overseas Indian citizens who are foreign medical graduates, who do not fall under the purview of National Medical Commission
Foreign Medical Graduate Licentiate Regulations 2021 shall be regulated by provisions of subsection 3 of section 13 of Indian Medical Council Act 1956. यहाँ जो 102 ऑफ 1956 लिखा है, इसका भी मैं कोटेशन अभी आपको दिखाती हूँ. इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइजरी नंबर MCI 203, द रजिस्ट्रेशन नंबर is 118239, dated the 2nd September 2020, and shall be required to complete CRMI in India if they have not undergone such practical training after obtaining such qualification as may be required by the rules and regulation in force in the country granting such qualification or has not undergone any practical training in that country. तो ये जो 118239 है, ये क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी. तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप इस परव्यू में नहीं पढ़ते हैं, परव्यू मतलब होता है द स्कोप ऑफ इट, हु आर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, और इसमें नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको पता है कि 18 नवंबर से पहले वाले बच्चे को ये रूल्स नहीं लागू होंगे. तो उन पे कौन सा रूल लागू होगा? तो उन पे जो रूल लागू होगा उन्होंने उस पर मैंशन किया है 118239. जो ये 118239 है, ये है आपका 118239. This is the continuation of advisory bearing number 112442. 112442 में पहले इन्होंने यहाँ कोटेशन डाली, जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है पहले वाले में कि 1956 से हमने कोट उठाया है. इसमें लिखा है इन टर्म्स ऑफ द aforesaid provision it is clarified that the practical training undergone by Indian citizens while acquiring the primary medical graduation from a medical license is acceptable. तो वहाँ पे बात हुई थी CRMI की, लेकिन यहाँ पे जो बात हुई है कि अगर आप इस परव्यू में नहीं पढ़ते हैं, नेशनल मेडिकल काउंसिल का, नेशनल मेडिकल कमीशन का जो नया रेगुलेशन आया है, इसके अंडर नहीं हैं आप, तो आपके लिए ये एक्सेप्टेबल है. तो अगर 18 नवंबर से पहले वाले बच्चों की बात की जाए तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है. और ये क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन है इसका, तो इसमें यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं करने की बात करी गई है, CRMI नहीं करने की बात करी गई है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर सच स्टूडेंट्स टू डू 12 मंथ इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग. एंड इसके अलावा जो इसका सेकंड पेज है, उसमें ये बात की गई थी कि बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस और चाइना तो पीछे है ही. तो जो बच्चे चाइना, नेपाल और बांग्लादेश और फिलीपींस से कर रहे हैं, उनके ऊपर ये नॉर्मल रूल लागू होंगे. ये सारे मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इंटर्नशिप करना ना करना, एक्सेप्टेबिलिटी, ऐसा वो. तो चाइना, नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस के लिए अभी जो पुराना एडवाइजरी थी उसको यहाँ लिखने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है, वो नलीफाई नहीं हुई है. तो वो चीज़ तो आपकी है. कई बच्चे बोल रहे थे कि नहीं करनी है, तो यहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो गई. पहला ऑब्जेक्शन हम लोगों का है इसमें कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया उस कंट्री में या तो कैपेबिलिटी के ऊपर बात की गई है. तो या तो कॉम्पिटेंट होना काफ़ी है या फिर रजिस्टर्ड होना काफ़ी है. अगर ये चीज़ मांगी गई इन डॉक्यूमेंटेशन तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है. सेकेंड इज एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर्नशिप डन इन फॉरेन कंट्री. जो ये इंटर्नशिप हम बाहर से करके आए हैं वो सभी के लिए यहाँ पे लागू हो, ताकि उन्हें अलग से ना करनी पड़े. तो यही दो ऑब्जेक्शन बचे हैं, ठीक है ना. एक अलग से इंटर्नशिप से CRMI करने की बात कही गई है और दूसरी है रजिस्ट्रेशन उस कंट्री में करना. अभी इन दोनों चीज़ों पे ही मुद्दे खड़े होने वाले हैं. अगर मैं बात करूँ 6 साल पढ़ाने वाली कंट्री, तो 6 साल में आपको कौन कौन सी कंट्री पढ़ाती हैं? रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया. अगर मैं ये सोचूं कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन सिमिलर तरीके से बढ़ेंगे और ऐसे ही होंगे, तो रशिया जो 6 साल में पढ़ाती हैं, अगर ये अपना रूल चेंज नहीं कर पाती हैं तो उन्हें 6+1+1 करना होगा, ठीक है. यूक्रेन से ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है. दे आर रेडी टू इंक्लूड द मॉडिफिकेशन जो करना होता है, तो इनका ये इस तरह का मॉड्यूल में चेंज हो सकते हैं. तो आपको जो पहले जिस तरह से करना होता था वैसे ही करना होगा, यानी कि 6 साल पढ़ाई वहाँ करनी होगी, फिर इंडिया में आके नेक्स्ट देना है और फिर इंटर्नशिप करनी है. बेलारूस इज़ ऑल्सो accepting it and ready to do the modification.
एंड एज वेल एज जॉर्जिया। रशिया की क्लैरिफिकेशंस अभी हमारे पास नहीं है, और अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूं। जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है कि दे माइट नॉट बी एबल टू डू सम मॉडिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय इंडिया। Also, they can approach the National Medical Council or Health Ministry for the same and explain their terms and conditions. 5 years वाली कंट्रीज़ हैं जैसे किर्गिस्तान और कज़ाकिस्तान। सो बेसिकली 54 मंथ्स का मतलब ही अपने आप में होता है 4.5 साल। 4.5 साल के बाद 1 साल की इंटर्नशिप। अगर ये मॉडिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान का, तो उन्हें शायद ज़्यादा नहीं करना है, उन्हें 5 to 5.5 का करना है। ठीक है, तो उतनी बड़ी दिक्कतें नहीं हैं। ये सब कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश का तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो लोग 5+1 करवाते हैं, यानी कि इंटर्नशिप भी करवाते ही थे, जो कि यहाँ पे एक्सेप्टेबल थी। अगर 18 नवंबर तक का बच्चे की बात करें तो उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, नेपाल भी इंटर्नशिप करवाता है, बांग्लादेश भी इंटर्नशिप करवाता है, बांग्लादेश तो रजिस्ट्रेशन भी देता है, तो बांग्लादेश की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एंड एक्सपेक्ट द फैक्ट दैट यू शुड नॉट हैव मोर देन 1 year गैप आफ्टर 12th, क्योंकि बांग्लादेश 12th के बाद 1 साल का गैप ही एक्सेप्ट करते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं मोस्ट टॉक्ड अबाउट कंट्री, कैरिबियन आइलैंड्स एंड फिलीपींस की। कैरिबियन आइलैंड्स में बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। बारबाडोस है, गयाना है, बहुत छोटी छोटी आती है, बेलीज़ है, सेंट लूसिया है, बहुत सारी आती है। इसमें तो बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं, इसलिए इसे कैरिबियन आइलैंड्स कहा जाता है। फिलीपींस एक अपना देश है, ठीक है, आइलैंड्स का पार्ट नहीं है, ऐसे अलग से देश है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपका BS कोर्स होता है, फिर आपका 4 साल का MD होता है, फिर आपका इंडिया में जो भी आपको करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। 18 नवंबर से पहले वाले बच्चों के लिए तो CNMI नहीं है। तो अब बेसिकली ये लोग 5.5 पढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन 1/4 में, ठीक है, यहाँ पे है 1। और अगर मैं बात करूँ तो MD प्रोग्राम तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल प्रोग्राम है, और MD प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो US में एग्जेम्प्टेड है। जो US की डिग्री लेके आते हैं उन्हें इंडिया में एग्ज़ाम ही नहीं देना पड़ता, वो भी MD प्रोग्राम ही करवाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी गाइस। पहली चीज़ ये होगी कि क्योंकि उन्होंने लिखा था कोर्स लीडिंग टू मेडिकल, तो दिस कोर्स nobody want to do BS course, but this is a prerequisite for doing MD. ये करना ज़रूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन फिलीपींस एम्बेसी इंडिया को दे देगी, या उनके पास ऑलरेडी है, बिकॉज आपको पता होगा कि जो BS की डिग्री है, नीट जब when NEET was become a part like eligibility for abroad, there were so many students who were studying in Philippines doing BS course. Then there was a big issue about that how will they be doing it, they have to come back to India or what. But then it was given a validity of 3 years, so that was because of Philippines only. ओके तो अभी क्या होने वाला है, अभी अगर आप फिलीपींस में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जैसा भी आपके उसमें है, तो पहला इशू क्या था, पहला इशू ये कहा जा रहा है कि लेट मी जस्ट फर्स्ट क्लियर इट। सो फर्स्ट इशू कहा जा रहा है दैट BS इन इंडिया, so it was always an option to do either in India or in Philippines, क्योंकि कैंपस हार्डली 1 या 2 कॉलेजेस के ही इंडिया में, बाकी सबके कैंपसेस फिलीपींस में ही हैं। तो कुछ ही यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन दे रही थी, और अगर ये नया रूल आएगा तो सारी यूनिवर्सिटी यही ऑप्शन दे सकती है, वो ये बंद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अभी तो पैंडमिक की वजह से सारी कंट्रीज़ का ही ये इशू है कि ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, तो फिलीपींस भी उसी रूल के हिसाब से चल सकती है। और जैसे ही फिलीपींस का स्टडी वीज़ा शुरू होगा, सारे बच्चों को फिलीपींस भेज के करिकुलम शुरू किया जा सकता है। ठीक है,
सेकेंड थिंग इज़ क्लर्कशिप। क्लर्कशिप तो हर जगह मेंशन किया ही हुआ है, क्लर्कशिप को एक्सेप्ट भी किया हुआ है, तो क्लर्कशिप कैन बी काउंटेड एज इंटर्नशिप बिकॉज इट इज़ ऑलवेज मेंशन इंटर्नशिप स्लैश क्लर्कशिप, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इंग्लिश स्पीकिंग, इट इज़ एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, तो वो पॉइंट भी फुलफिल हो रहा था, ठीक है। उसके बाद बीएस को पार्ट ऑफ एमडी मानने में जो दो इश्यूज आ सकते हैं, एक तो जितनी हमने बात करी है अभी तक, तो विद इन फ्यू डेज इट विल बी कंसिडर्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री और द एनएमसी as a clarification can be given that this will be the part of the curriculum. Second thing, even Philippines is ready to go flexible and integrate both the program. BS और MD को join करने को वो ready है, ठीक है। तो बस यहाँ तो फिलीपींस सबसे कम टाइम में आपको पूरा सब कुछ करवाने के लिए तैयार है। सेम विद करीबियन आइलैंड एज वेल, ओके। Most of the countries are actually falling in those category which is mentioned in the Gazette, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि आपका डिग्री इनवैलिड हो जाएगी, आपका आगे फ्यूचर बेकार होगा, नहीं। आपने किसी भी कंट्री में इसमें करवाया हुआ है तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट होगा। इसमें सिर्फ थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, और जो कंट्रीज़ फ्लेक्सिबल तरीके से कर सकती हैं तो वो कर रही हैं और अपने उसमें वो चेंजेस ला रही हैं। बस दो ही बात बोलूँगी कि एक एडिशनल ईयर इंटर्नशिप में देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर बच्चों का वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि वो अगर किसी कंट्री से ऑलरेडी करके आ रहे हैं तो उनको इससे एग्जाम कर देना चाहिए। और दूसरी बात, उस कंट्री में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जाने बिना रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन रखना भी गलत है। अगर ये 2 पॉइंट हट जाते हैं तो ये गज़ेट में कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस चीज़ में स्टूडेंट्स के हित के लिए काम करने के लिए हम लोग बहुत जल्द इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाने वाले हैं। आगे जो होगा वो बताने में मुझे कुछ थोड़ा और वक्त चाहिए, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड एंड फाइनलाइज द स्ट्रैटेजी, बट वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। आई एम थैंकफुल टू एवरी स्टूडेंट हु हैज़ बीन सो पेशेंट फॉर माई वीडियो, and I hope I've tried to make you understand that this gazette is just about 2 points, not much. And all the countries where you guys are going to study, if you have understood my explanation, then you would have understood it, what it requires. तो पैनिक मत होइए, और इसमें बहुत जल्दी हम लोग गवर्नमेंट से बातचीत करके कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करके शायद बहुत जल्द इस चीज़ में जो चेंजेस की ज़रूरत है वो ले आएंगे। हर साल कुछ ना कुछ कानून बनते हैं, कुछ नए नियम आते हैं, और कोर्ट हमेशा स्टूडेंट्स की तरफदारी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। अगर इसमें कुछ ऐसा पॉइंट होता जो एक्सेप्टेबल है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें लिखा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होना चाहिए, जो कि एक अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। बट जो 2 पॉइंट अच्छे नहीं हैं उसके बारे में अगर कोर्ट में हम लोग पहुंच के इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो यकीन मानिए कि मुझे लगता है कि ये हमारे ही फेवर में आएगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, या फिर आप टोल फ्री नंबर पे भी बुक माई यूनिवर्सिटी कॉल कर सकते हैं। वी हैव नो इश्यूज़ टू गिव यू क्लैरिफिकेशन, वी हैव बीन गिविंग clarification, we are getting a lot of calls about the same thing. All I want to say is that it's not the end of the day. जब नीट कंपल्सरी हुआ था अब्रॉड के लिए तो भी हमने सुप्रीम कोर्ट से एक टाइम का एग्जेम्पशन लिया था, आपको याद होगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें सॉल्वेबल भी होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने एडमिशन ले लिया बहुत अच्छी बात है, लेना चाहते तो भी लीजिए, बिकॉज इसका तो सोल्यूशन निकलना ही है, आज नहीं तो कल। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इन चीज़ों को अमेंड किया जाएगा बहुत जल्द, चीज़ें रखी जाएंगी, अपना पक्ष रखने की सबको आज़ादी होती है तो वो चीज़ की जाएगी, और सारी कंट्रीज़ का जो प्रॉपर तरीका है वो किया जाएगा। और इसमें जो भी अपडेट्स आएंगी, चाहे किसी पर्टिकुलर कंट्री की हों, तो मैं आप लोगों को हमेशा उसको अपडेट करती रहूँगी। आप ये मत सोचिए कि एक पर्टिकुलर कंट्री को लेके ही मैं वीडियो बनाऊँगी या एक पर्टिकुलर कंट्री को लेके ही मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी, नहीं। जो भी होगा, जैसा भी मुझे इन्फॉर्मेशन आएगा, आई एम अ पर्सन
who would give you the right information by the authentic resources, by the authentic sources, and just to clear the air. Okay, so I hope you liked the video, you understood the video, you understood the gazette, you must have felt some relaxation after watching it कि दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है और वो डेफिनेटली समझने की बात है. एक छोटा सा टेक्निकल ग्लिच है जिसे ठीक किया जाएगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. सो थैंक यू फॉर द पेशेंस, टेक केयर एंड बी रिलैक्स्ड, do not overthink about this, and everything will be perfectly fine in very few days. Thank you so much.